ओके जी। तो हम अपने प्रीवियस जो हम बात कर रहे थे उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। और ये आपको उम्मीद करता हूँ कि नज़र आ रहा होगा। ठीक। स्क्रीन सॉरी, मैंने वो उतार दी। और ये पेन मेरा डिजिटल पेन नहीं है। ये मुझे लगा रहा है, 1 मिनट का टाइम दो। बी अवेलेबल फॉर यू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम जो टॉपिक है, मैं इन दो टॉपिक्स को आपस में अब मिलाना चाहता हूँ। कुछ मैंने कंपैरिजन के दौरान DTFT जी ट्रांसफॉर्म, इनको मैंने कुछ ना कुछ अच्छी खासा मैंने इनके ऊपर बात की, जहाँ पे ये एक दूसरे से डिफर करते हैं या जहाँ पे एक दूसरे के साथ ये कंपेयर हो सकते हैं या कॉन्ट्रास्ट हो सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी आपको कहा जाए कि जनाब हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दो, बताओ, फाइंड करके दो कि इस सिग्नल का, इस सिस्टम का क्या है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे पूछने वाला ये पूछ रहा है कि जी यू शुड give a plot of the omega. And what is small omega? This is the digital frequency. But it is continuous. Do remember, it is continuous. And at the x-axis, that means the um, dependent variable and non-dependent variable is the frequency, which is the digital frequency. क्यों आर्म फ्रीक्वेंसी और इसमें क्या फर्क है? आर्म फ्रीक्वेंसी को DSP में we represent by capital omega, and the value of this frequency can be from minus infinity to plus infinity, while the digital frequency is again continuous, but its value is between 0 and 2 pi, or between minus pi to plus pi. समझ आ गए? तो this is basically periodic. After every 2 pi it repeats. ठीक। यही बात मैंने यहाँ क्लियर करने की कोशिश की कि when you have an omega, you plot it with the, if it is h of n for example, तो h of n का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा? h of e j ओमेगा, जिसको आप शॉर्ट में बाजू का h of ओमेगा भी लिखते हैं। नॉट बैड, नॉट रॉन्ग। ठीक। लेकिन this quantity is a complex quantity. This complex quantity. This is not a real term. That's the reason, whenever it is complex, you have two things. One is the magnitude, and the other one is the phase. Magnitude and phase. So when you find the magnitude and plot on y-axis, you take the magnitude of this complex quantity and plot it against the omega. What you get? You get the magnitude response. You get the frequency response in terms of magnitude response. समझ आ रही मेरी बात? आप कहेंगे कि जी हम तो नहीं बता सकते, तो आप मुझे उसमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि जी क्या आप कहना चाहते हैं। तो दिस इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, यूर रिस्पॉन्स, सॉरी, आई एम एट द राइट प्लेस, रिस्पॉन्स। और अगर आप, और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव a plus jb, which is a complex quantity, so if you take the a square plus b square, if it is rectangular में आपने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। और अगर आपने पोलर में किया है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। पोलर में हाउ यू रिप्रेजेंट? यू से दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द एंगल। So then you have the magnitude and phase separate from one another. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका यही बात कहना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स में दूसरी चीज जो आपके पास एच ई जे ओमेगा से मिल सकती है, दैट इज द फेज, एंड दैट फेज इज गिवन बाय टेन इनवर्स b by a in imaginary divide by the real part and take the tan inverse, it will give you the angle phase. And when you plot the phase here on the y-axis and plot it against omega, small omega, digital frequency, so you will be getting the phase response. Phase response. And when you do both of them, इसका मतलब है you got the frequency response. तो अगर पेपर में आ जाए या कोई भी दुनिया आपकी
प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आ जाए कि जी इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बताओ, तो डू अंडरस्टैंड दैट द पर्सन इज आस्किंग यू बोथ द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स एंड द फेज रिस्पॉन्स. ठीक है. एंड दैट frequency is, as I said, it is an angle. Like here, this is the angle, this is the angle, which may be any value because it's the radians. So radians may be pi by 2, pi by 4, pi by 2, 3 pi by 4, blah blah, pi, then up to 2 pi. इसलिए मैंने यहां लिख दिया कि your omega is between 0 and 2 pi or between minus pi to plus pi. तो ये मैंने कहा कि when magnitude is plotted against omega, we get the magnitude response. And when we plot the phase of the complex quantity against the omega, we get the phase response. That's the reason I mentioned here that the frequency response is basically two responses collectively called frequency response, which are the magnitude response and the phase response. I hope it makes sense. But if it doesn't make, please let me know. अब जनाब हम आते हैं इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. क्या करेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की? हमने कहा कि अगर हमारा चाहे सिस्टम है, चाहे सिग्नल है, चाहे एक्स ऑफ एन है कि वाई ऑफ एन है कि एच ऑफ एन है, डजंट मैटर. इफ इट इज रियल, because it can be real or it can be imaginary. If it is real, then like I gave an example to you that it is 1 0 1 2 4 8 6 blah blah whatever, but all are the real values. None of them is the complex value. None is 2 plus j iota, 2 plus j 2, or 3 plus j 4, whatever. No, none of them is. In this case, the magnitude response which you will be getting will be symmetric. The magnitude response will be symmetric. By symmetric we mean, you know, कि जो आपके y axis के एक तरफ है, एग्जैक्टली दूसरी तरफ भी नेगेटिव साइड पे भी वही चीज होगा. इट इज सिमेट्रिक, और इट इज कॉल्ड प्रॉपरली, इट इज कॉल्ड द इवन सिमेट्रिक. सो डू रिमेंबर that if your time domain signal comprises real values, positive or negative, doesn't matter, but they are not complex. So you will always be getting the magnitude response value, which will be plotted. Here is omega, and here is the magnitude of h of omega, magnitude on y-axis. If you plot whatever you getting from 0 to 2 pi, for example, from 0 to minus 2 pi, again you will be getting the same. It is even symmetric. मैंने symmetric पढ़ाया हुआ है. Okay, तो कहते हैं the magnitude response of h of j omega is even symmetric. और phase response क्या होगा? phase response क्या होगा? That will be odd symmetric. Odd symmetric. यानी देखिए लिखा हुआ है, and the phase response, देखिए phase response is also symmetric but not even, odd symmetric. Odd symmetric मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर यहां पे कोई वैल्यू है मिसाल के तौर पे, तो यहां पे नहीं, यहां पे उसका थर्ड क्वाड्रेंट में उसका रेप्लिका आपको नजर आएगा. बेसिकली होता यह है कि दैट इज रेप्लिकेटेड इन द सेकंड, इन द फोर्थ डोमेन, एंड देन फ्रॉम हियर इट इज लाइक दिस, एंड देन फ्रॉम हियर इट गोज हियर. दिस इज कॉल्ड ऑड सिमेट्रिक. यानी कि ये होगा और उसके साथ ये होगा, ये नहीं होगा. मैंने समझाने के लिए सिर्फ कहा. ठीक है. तो कहता है जी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ ओमेगा. मैंने पहले बताया कि ये वाला एक्सेस आपका ओमेगा है, और ये वाला एक्सेस वाई एक्सेस जो है, इट विल बी ईदर द मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ ओमेगा एंड इट मे बी द फेज ऑफ एच ऑफ ओमेगा. ठीक हो गया. तो ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ ओमेगा, ईदर फ्रॉम 0 to 2 pi और फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई. ओके, आगे चलते हैं जी. ओके, तो यही चीज यहां पे बताई जा रही है कि अगर इवन सिमेट्रिक का क्या मतलब है और ऑड सिमेट्रिक का क्या मतलब है. ठीक. अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कल हमें कोई प्रॉब्लम ऐसा मिल जाए, हाउ विल बी डीलिंग विद दिस. अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको एक डिफरेंस इक्वेशन दे दी गई है
और कहा गया है कि जनाब आप इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बताएं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से मुराद है कि वो आपसे मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स भी मांग रहा है और फेज रिस्पॉन्स भी मांग रहा है। सो हाउ विल बी डीलिंग विद दिस? वेरी सिंपल। y of n given 1 by 6 x of n 1 by 3 x of n minus 1 will be the shifted signal, and then again a shifted signal which is delayed by 2 indexes 1 by 6 multiplied. Very simple. मुझे फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स। या तो मैं इसको डायरेक्टली फोरियर की तरफ ले जाऊं, या मैं इसको जी ट्रांसफॉर्म जो कि इजी है उसके जरिए चला जाऊं, क्योंकि हमें पता है कि आर की वैल्यू 1 ले लें तो आप डीटीएफटी में लैंड कर जाएंगे, और अगर आर जेनेरिक रखें तो आप जी ट्रांसफॉर्म में लैंड करते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात है? ओनली एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू रिप्लेस द जी विद द ई जे ओमेगा। ठीक है, तो अब और भी करके देखते हैं, समझ आ जाएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि पहला स्टेप ये है कि हम इसका जी ट्रांसफॉर्म लें। तो वेरी सिंपल, अगर ये y ऑफ n है तो इसका z ट्रांसफॉर्म पेयर है y ऑफ z, जेनेरिक। इसी तरह यहाँ पे x ऑफ n है तो यहाँ पे x ऑफ z। अब अगर इसका x ऑफ z है तो ये एक शिफ्टेड है। प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने कि अगर शिफ्टेड हो तो क्या करना है, x z के साथ वही आपका x ऑफ z मल्टीप्लाइड बाई z की पावर -1। इसी तरह ये 2 का शिफ्टेड है तो -2। वेरी सिंपल। अब मैंने क्या किया, इन तीनों में x ऑफ z कॉमन है। x ऑफ z कॉमन है, कॉमन ले लिया। 1/6 रह गया, 1/3 जी इनवर्स रह गया, 1/6 जी -2 रह गया। नाइस। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये x ऑफ z में लेफ्ट साइड पे ले गया तो ये बन गया x y ऑफ z डिवाइडेड बाय x ऑफ z, which is nothing but h of z. And what is h of z? Output divided by input, which means the transfer function, which means the transfer function. So that is given by 1/6 into z inverse divided by 3 plus z -2 divided by 6. So I found the characteristic of the system. That system has a system response something like this. ठीक है, उसने मांगा भी मुझसे यही है कि किसका फाइंड करो, सिस्टम का। इन उसने आउटपुट दे दिया और मांगा मुझे सिस्टम है। इट मीन्स वो अगर आपने थोड़ी सी भी तवज्जो दी हो इस बात पे तो वो आपको एच ऑफ जी की तरफ या एच ऑफ एन की तरफ ले जाना चाहता है, या एच ऑफ ई जे ओमेगा की तरफ ले जाना चाहता है। ठीक है, तो मैं एच की तरफ आ गया और एच ऑफ जी मैंने फाइंड कर ली। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ये जनाब, अब हमने कहा कि जहां जहां जी है वहां पे आप ई जे ओमेगा से, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, रिप्लेस कर दो। तो जनाब जहां जहां पे ई, यहां पे अगर आपने तवज्जो दी है तो यहां पे प्रीवियस पेज पे जाके देखो, 1/6 प्लस 1/3 जी इनवर्स प्लस 1/6 जी -2 है। तो जहां जहां जी है वहां पे ई जे ओमेगा पुट कर दो, ये -7 आ गया, ये माइनस, इस तरह यहाँ पे -2 आ गया, और सिंपल हो गया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें से मैंने ई जे ओमेगा इन दोनों में कॉमन है। मैं यहां पे थोड़ी सी ट्रिक इसके साथ कर लेता हूं, 1/6 ई जे ओमेगा इंटू ई माइनस जे ओमेगा। तो आपको तो पता है, आप तो इंटेलिजेंट हैं, माशाल्लाह हैं, मैथ्स भी आपने पढ़ा है, मैट्रिक भी की है, फिसी भी की है, बड़ी बात है जी। तो यहाँ पे ई की बेसिस ऑफ सेम पावर आर एडेड, तो ई जे ओमेगा एंड माइनस जे ओमेगा विल बिकम 0 एंड ई की पावर 0 इज 1। क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने सिर्फ इंटेलिजेंटली प्ले किया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं ये कर लूं तो इसका मतलब इसमें से मैं ई माइनस जे ओमेगा कॉमन ले लूं, तो यहां पे रह जाएगा 1/6 ई पॉजिटिव ई जे ओमेगा। यहां से तो एक ही गरीब मस्कीन था, बाहर चला गया, तो यहाँ पे 1/3 रह जाएगा, और यहाँ पे 1/6 और एक ई जे ओमेगा रह जाएगा। नाइस। अब मैंने क्या किया, 1/3 इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, उसको साइड पे कर लिया, और इन दोनों से 1/6 कॉमन है, कॉमन ले लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने वाकई मैथ्स पढ़ा है तो आपको पता है कि प्रॉब्ली आयरलेस आइडेंटिटी कहती है कि कॉस थीटा बराबर होता है ई जे थीटा प्लस ई माइनस जे थीटा डिवाइड बाई 2।
और साइन थीटा बराबर होता है ई जे थीटा माइनस ई माइनस जे थीटा डिवाइड बाई 2 जे। याद आ रहा है ना? तो उसी को मैंने इस्तेमाल किया कि यहां पे अगर 2 है तो 2 यहां मल्टीप्लाई कर दें तो दिस बिकम इक्वल टू, इसका मतलब इसके मैं ये पुट कर सकता हूं, तो मैंने यही किया। यहां पे अगर थीटा था तो यहाँ थीटा था, यहाँ अगर ओमेगा होगा तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा है अब तो ओमेगा लगा दिया, 2 cos ओमेगा। अब सिंपल हो गया जनाब हमारे लिए कि ये 2 इस 6 से कैंसिल हो जाए तो वी गेट, ये 2 इस 6 से हो जाए तो आ जाएगा 1/3। तो ये 1/3 मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये 1/3। अब देखिए ये उसका मैग्नीट्यूड है। एक किस्म का, अगर आपको याद हो पोलर, हमने कहा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल में भी ये होता है विच इज लाइक समवट पोलर, कि दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड ई जे थीटा इज द फेस। इसका मतलब है कि अगर मैं इसके साथ को कंपेयर करूं, क्योंकि ये एच ऑफ अब हो बन चुका है, पहले ये था, थोड़ी सी तवज्जो दें, पहले ये था एच ऑफ, इससे पहले ये था एच ऑफ जी। लेकिन जहां जी की जगह मैंने जहां जहां जी है वहां मैंने पुट कर दिया ई जे ओमेगा और आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आप देख सकते हैं कि यहां पे आपने ये अब आपका डीटीएफटी बन चुका है। क्या बन चुका है? यानी इससे पहले इट वाज ए जी ट्रांसफॉर्म, इट वाज ए जी ट्रांसफॉर्म टिल दिस पॉइंट, टिल दिस पॉइंट इट वाज ए जी ट्रांसफॉर्म, and when we replace this z with ej omega, it became dtft, dtft, discrete time Fourier transform। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, इसके लिए चाय पीना जरूरी होती है। ओके, आगे बढ़ते से, ओके, तो जी, तो मैं बात कर रहा था कि यहां पे मैं अब एच ऑफ जे ओमेगा लिख रहा हूं, ये आपको नजर आ रहा है, मैं एच ऑफ जे ओमेगा लिख रहा हूं। क्लियर? तो नाउ दिस इज दी डीटीएफटी, डीटीएफटी फॉर, और उसने मांगा मुझसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मींस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स एंड फेज रिस्पॉन्स। उसने मुझसे पोल्स नहीं मांगे, उसने मुझसे जीरोस नहीं मांगे, उसने मुझसे स्टेबिलिटी नहीं पूछी, उसने मुझसे कॉजेलिटी नहीं पूछी। उसने मुझसे क्या पूछा है? that you have to understand frequency response. And what is frequency response? Magnitude response plus phase response। तो आगे चलते हैं जी, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अगर आप ये कंपैरिजन कर लें तो क्या कंपैरिजन से आया? एच ऑफ ई जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1 प्लस काज ओमेगा इज द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, एंड ई की पावर माइनस जे ओमेगा इज द फेज रिस्पॉन्स। तो इस 1 और 2 से मुझे कंपैरिजन से ये पता चल गया, क्योंकि मुझे पता है कि हर कंप्लेक्स नंबर किसी मैग्नीट्यूड और किसी फेज, तो इन दोनों को मैंने कंपैरिजन में इजीली सॉल्व कर लिया कि जी मैग्नीट्यूड रिस्पांस ये है और फेज रिस्पांस ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। ओके, तो ये आपका दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली, इसका मतलब हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। आगे का आपको पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में दो चीजें, एक डिस्क्रीट टाइम फोरियर आपने पढ़ा हुआ है, और एक डिस्क्रीट फोरियर, डीएफटी, डिस्क्रीट फोरियर। तो हम इसको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सिग्नल प्रोसेसिंग। सो आपको पता है कि, और दोनों का डिफरेंस भी आपको पता है कि दोनों में फर्क ये है कि अगर आप एक एक्साफेन ले लेते हैं, एक्साफेन ले लेते हैं और उसका आप करते हैं डी टी एफ टी, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो आप लैंड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है फ्रीक्वेंसी, लेकिन दिस फ्रीक्वेंसी डोमेन विल बी अ कंटिन्यूस ऑफ ओमेगा। इसलिए हम लिखते हैं एक्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स ऑफ एन है तो वी राइट एक्स ऑफ ओमेगा, या बाजू का हम लिखते हैं एक्स ऑफ ई जे ओमेगा, तो जो लिखें दोनों राइट हैं।
लेकिन अगर आप एक्स ऑफ एन देते हैं अपने डीएफटी को, जिसका एक बेहतरीन जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है दैट इज एफएफटी, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इट गिव्स यू अगेन द फ्रीक्वेंसी बट इट गिव यू द discrete frequencies, discrete frequencies, and they are mostly represented by k. So we write in output as x of k, x of k, and I will let you know what is the relation between the two, because आपको अब पता चल गया, पहले भी पता है, मैं उम्मीद करता हूं कि here you have the continuous, here you have the continuous, and to convert the continuous into discrete you need to do the sampling. So basically we will be doing the sampling and we'll be getting these values. ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात जो हमने क्लास में पहले की भी हुई है आपको क्लियर होगी, लेकिन थोड़ा सा पढ़ें सीखें, अच्छा लगेगा। ओके, तो जनाब हम आगाज करते हैं डीटीएफटी से, जो कि हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो उसका फार्मूला है एक्स ऑफ ओमेगा या एक्स ऑफ ई जे ओमेगा, जैसे मैंने कहा दोनों इज फाइन, इट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन, जो कि आपका टाइम डोमेन डिस्क्रीट सिग्नल है, एंड ई माइनस जे ओमेगा एन, वेरी सिमिलर टू दी जी, जी माइनस एन। तो जी अभी आपने कहा है कि जी इज नथिंग बट ई माइनस जे ओमेगा। ठीक, तो अगर ये एंटी कॉजल है तो यू विल बी गोइंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और अगर ये कॉजल सिग्नल या सिस्टम है तो यू विल बी गोइंग फ्रॉम जीरो टू infinity, the same formula. ठीक, so but do remember that you have x of n which is discrete, so you are inputting something which is discrete in time and you are getting something omega which is continuous in time, which is continuous in time, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया कि your n is in discrete time while your omega is, which is a digital frequency, but it is continuous and it is periodic with a period of 0 to 2 pi. ठीक है, तो यहां मैंने इसको रिप्रेजेंट भी किया ताकि आपको पता चले कि यू आर, यहां पे आर की वैल्यू 1 है, यहाँ आर की वैल्यू 1 है, तो देखिए यहाँ पे इसका रेडियस 1 एंड दैट इज अ सर्कल, आई मीन यू नो कि अगर सर्कल होता है तो उसका पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है, तो इसलिए लिखा है कि जी इट इज 0 to 2 पाई। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जनाब इससे पता चला कि एक तरफ आपका डिस्क्रीट सिग्नल है एक्स ऑफ एन, और उसका जो ट्रांसफॉर्म पेयर है वो एक्स ऑफ ई जे ओमेगा या एक्स ऑफ ओमेगा भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन कैपिटल कभी ना लिखना, यानी कि ये नहीं लिखना, ये लिख दो तो बात मान ली जाएगी, लेकिन अगर कैपिटल लिख दिया तो देन इट इज नॉट द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, बट इट विल बी कॉल्ड द कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आपने दुनिया बदल दी, एक्सेप्टेबल नहीं होगा फिर। ठीक है, आगे चलते हैं जी। जी, तो अब, और अगर आपने वापस आना हो ध्यान दो ना पे, अगर आपने टाइम से, अगर आपने टाइम से डिस्क्रीट टाइम से कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में चले गए, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में चले गए, अच्छी बात है, लेकिन याद रखो कि अगर इस रेड का हल है तो फिर इस ग्रीन का भी हल होना चाहिए कि यू मूव बैक फ्रॉम द कंटिन्यूअस into discrete, and that will be called as, if this is called discrete time Fourier transform, it will be called as inverse discrete time Fourier transform. वही यहां पे बताने की कोशिश की गई है कि इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, कि यू हैव दी, नाउ यू हैव इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन and you are moving from the frequency domain to the time domain, which means discrete time. So what will be the definition, what will be the formula? You understand कि again आपने इधर से इधर जाने के लिए you did the summation because you have the discrete signal and now it is a continuous, and whenever you have a continuous signal as an input, instead of using the summation you need to use the integration. आज समझ आई होगी आपको कि इन दोनों में, समेशन में और इंटीग्रेशन में क्या फर्क है। इट इज ऑल्सो गेन अ समेशन बट इन द कंटिन्यूस डोमेन, तो इसलिए हमने इनपुट लिया विच इज कंटिन्यूस, अगेन वहां पे ई माइनस जे ओमेगा एन था तो यहाँ पे ई जे ओमेगा एन है,
and you are integrating it with respect to omega. You are integrating it with respect to omega, which is your which is your discrete frequency, which is continuous discrete frequency. And you will be, because your period is now 0 to 2 pi, so you may divide it, you may integrate it from 0 to 2 pi or from minus pi to plus pi, your wish, and divide by 2 pi to get the area under the curve. ठीक है ना जी? So now you have the idea that how you can move from time, from discrete time to, this is capital. No, this is x of n. This is x of n. So x of n is equal to this. It is time domain, and from you are moving from the time domain to the sorry, it is capital. ठीक लिखा था, सिर्फ इसको मिटा देता हूं. It is only the difference should be that it is capital X. Bas. So this is the formula which we have already covered, and if you want to reverse it, that is the inverse of dTft, and that is the dTft. ठीक हो गया जी? अब हम आते हैं अपने दूसरे भाई की तरफ, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोर प्रैक्टिकल है, कि दैट इज दी, क्योंकि हमारा कंप्यूटर डिस्क्रीट वैल्यूज सेव करता है, कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं सेव कर सकता. इसलिए ये जो कंटिन्यूस वैल्यूज अगर देगा भी एक्स आर वी जे ओमेगा, तो हमने इसको भी सैम्पलिंग करनी पड़ेगी. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए मैं अपने प्यारे टॉपिक की तरफ आना चाहता हूं, जो कि मुझे पता है कि आपको अच्छा लगता है, तो वही टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं. उसमें क्या है, अगेन यू हैव दी एक्स ऑफ एन, which means discrete time, and this discrete time signal you are feeding to a mathematical tool. Again, all of them which I am covering is the mathematical tools, and that tool is the DFT. Now it is not the discrete time Fourier transform, it is discrete Fourier transform. And now you get the output frequency, but not the continuous, but the discrete one. That's the reason I have written here x of k, x of omega नहीं लिखा, which means k की वैल्यू अगर 0 है तो x of 0 आ जाएगा, x अगर k की वैल्यू 1 है तो x of 1 आ जाएगा, x of 2 आ जाएगा. लाइक जैसे आप कहते थे x of 0, x of 1, x of 2, तो बिल्कुल उसी तरह आपको ये वैल्यूज भी फ्रीक्वेंसी में मिल जाएंगी. एंड डेफिनेटली अगर आप फ्रीक्वेंसी में लैंड कर गए, क्यों फ्रीक्वेंसी में लैंड करना चाहते हो? बिकॉज यू विजुअलाइज थिंग्स, यू कैन डू द प्लानिंग, यू कैन डू द डिजाइन. ठीक है, ओके. तो अगर आप, लेकिन अब इफ यू वांट टू वापस रिटर्न, तो इंस्टेड ऑफ दी डीएफटी यू विल बी यूजिंग आईडीएफटी, यानी इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. एंड व्हाट्स द डिफरेंस? लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज द डेफिनेशन. एंड आई वांट दैट, आपको मैं यहां लिखता हूं एक्स ऑफ ओमेगा is equal to summation n is equal to minus infinity to plus infinity x of n, ताकि दोनों में डिफरेंस समझ आ जाए, e माइनस जे ओमेगा एन था. ये आपका है डीएफटी, ये है आपका डीटीएफटी. दोनों को कंपेयर करो ताकि समझ आए. तो यहां पे फर्क क्या हुआ कि बेसिकली यू हैव, देखिए यहां पे भी जे ओमेगा जे और यहां भी एन है. इसका मतलब दिस ओमेगा हैज बीन रिटन एज 2 पाई के डिवाइडेड बाय एन. तो व्हाट इज दिस? बेसिकली दिस ओमेगा हैज बीन रिटन एज 2 पाई डिवाइडेड बाय एन के. सो बेसिकली पुटिंग द वैल्यूज ऑफ के, अभी अगली स्लाइड में बताता हूं, के की वैल्यूज यू आर सैंपलिंग दिस ओमेगा. मिसाल के तौर पे इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ के एज 0, तो व्हाट यू गेट? ओमेगा इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि यू गेट फॉर के इज इक्वल टू 0 एट 0, ओमेगा हो गया 0 पे. फिर अगर इफ यू पुट हियर 1 फॉर एग्जांपल, ओके, इफ यू पुट हियर एंड यू हैव डेफिनेटली सम वैल्यूज ऑफ n, because it is discrete, and if it is discrete it must have some capital N number of samples. तो यहां पे अब इंफिनिटी नहीं है, n number of samples हैं. तो मे बी यू आर इंटरेस्टेड फॉर एग्जाम्पल इन 4, n की वैल्यू लेट इट बी 4 है. तो इफ यू पुट हियर 1,
इट बिकम 2 पाई डिवाइड बाई 4। 2 इसे कैंसिल दो, द नेक्स्ट ओमेगा विल बी एट पाई बाई 2। अब आप यहाँ पे 2 पुट कर दो के की वैल्यू, तो 2 इंटू 2 4, 4 डिवाइड बाई 4 कैंसिल, पाई। तो देखिए अब आपकी वैल्यूज 0 पे है, पाई बाई 2 पे है, पाई पे है, सब पे नहीं है। तो दैट बिकम डिस्क्रीट। तो यू आर सैम्पलिंग द फ्रीक्वेंसी, यू आर सैम्पलिंग द डिस्क्रीट डिजिटल फ्रीक्वेंसी। समझ आ रही है? तो और लाजमी तौर पे इसमें सब समेशन थी, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था, क्योंकि हमारा एक्स ऑफ एन, क्योंकि हम जा रहे थे जिस जगह पे वो कुछ भी वैल्यू रख सकता है। लेकिन यहां पे अब आपके लिए बड़ा आसान कर दिया गया कि नहीं जी, इफ यू नीड हैव एन सैंपल्स, एन सैंपल्स हैं आपके एक्स ऑफ एन में, तो यू शुड ओनली गो फ्रॉम 0 to n-1, ताकि ये एन सैंपल्स पे काम कर जाए। तो बस दैट इज द मेजर डिफरेंस, बाकी तो गपशप है। बाकी तो डीएफटी आसान है, गपशप भी है और आसान भी है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए यही वही बात, यहाँ पे आपकी के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके n-1, जितने आपके सैंपल्स हैं, जितने यहाँ से सैंपल आएंगे उतनी के की वैल्यूज आप इनमें पुट करें। कैसे करेंगे, अभी प्रॉब्लम्स करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये देखें, और अगर उल्टा आना है, अब आप, मैं यहाँ भी इसको लिखता हूं ताकि आपको समझ आए। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर बस वो एक चेयर लेके गए थे, वापस रख दी। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्स ऑफ एन हमने अभी यहां लिखा है, एक्स ऑफ एन जब हम डीएफटी कर रहे थे तो हमने लिखा था एक्स ऑफ एन समेशन, उसी तरह और सॉरी, यहां पे हम कैपिटल एक्स ऑफ, सॉरी, इसको मैं डीएफटी पहले लिखता हूं ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो जाए। तो वो था एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ के, एक्स ऑफ के क्योंकि डीएफटी था, एंड दैट वाज इक्वल टू समेशन 0 to n-1 के की वैल्यू, एंड हेयर आपने यूज किया था एक्स ऑफ एन, और e-j 2 पाई n डिवाइड के डिवाइड बाय कैपिटल एन था। तो आप देखें दोनों में फर्क क्या है। अब आप यहां पे आपने टाइम दिया, टाइम दिया, डिस्क्रीट टाइम दिया, और आउटपुट में आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज हासिल कर ली। डिस्क्रीट टाइम दिया और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज हासिल कर ली, जबकि यहां पे आपने, क्योंकि इन्वर्स है ना, अब आप इसके अपोजिट करेंगे, यानी ये जो मैंने रेड कलर से लगाया है, इस रेड कलर की बजाय आई यूज दी ग्रीन कलर। इसका मतलब है कि फ्रॉम द डिस्क्रीट यू वांट टू मूव बैक टू द टाइम, तो यू व्हाट यू विल बी गिविंग discrete frequencies, so that is the discrete frequencies, and the sign will become from minus to positive, ulta ho gaya, and summation is the same, summation is the same, so this is called inverse डीएफटी। तो देखें, आल्तो के मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ पे मैंने पहले से आप लोगों के लिए बनाया हुआ था कि अगर आपने, अब रिलेशन आप इन दोनों के दरमियान में, दैट इज अगेन ए गुड क्वेश्चन, कि आपने डीटीएफटी पढ़ा, डीटीएफटी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पहली दफा नहीं पढ़ रहे हो, तो दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, सॉरी जी, अगर इफ इट इज कॉजल, तो 0 to ∞, अदरवाइज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक, एंड दिस इज j-j ओमेगा है। जबकि डीएफटी में क्या फर्क हुआ, एक तो आपने वही समेशन है, लेकिन अब आपने जितने आपके सैंपल्स हैं इनपुट में उतना ही समेशन करना है, और दूसरा आपने ओमेगा को डिस्क्रिटाइज कर देना है। यहां पे अब आपने लिखना क्या है, ओमेगा की जगह 2 पाई k डिवाइड बाय कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ सैंपल्स इन एक्स ऑफ एन। समझ आ गई? ओके, आगे चलते हैं जी। तो यही चीज यहां पे देखिए मैंने बनाई है आप लोगों के लिए कि व्हाट इज दिस ओमेगा इज नथिंग बट, दिस ओमेगा इज नथिंग बट दिस थिंग, 2 पाई k डिवाइड बाय एन। और एन क्या है, एन जितना आपने इस ओमेगा को पीसेस में तोड़ना है, ये उतने पीसेस का नाम है। मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने इसको 8 पीसेस में तोड़ा,
यानी कैपिटल एन की वैल्यू मैंने 8 एज्यूम कराई, मेरी मर्जी। जैसे देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 0 से 7 तक इट इज 8। तो इसका मतलब कि पहली वैल्यू मैं 0 पे लूंगा, फिर मैं लूंगा π/4 पे वैल्यू, फिर मैं लूंगा 2π/4 जिस π/2, फिर मैं लूंगा 3π/4 पे, फिर मैं लूंगा पाई 4π/4 पे, एंड सो ऑन। और यहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा कि अगर आपकी k की वैल्यू 0 है तो पुट हियर द वैल्यू ऑफ k एज 0, क्योंकि 2π/n इंटू k है। तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 पुट कर दें तो यू गेट 0, तो आपको ओमेगा की वैल्यू 0 आ गई। फिर आपने k की वैल्यू 1 पुट की तो 2π/1, तो 2 8 से कैंसिल, तो π/4। इसी तरह जैसे मैंने यहाँ करके भी दिखाया π/2, फिर 3π/4, एंड देन इट विल बी एट पाई। तो बेसिकली दीज आर द वैल्यूज ऑफ ओमेगा जिसपे आप डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं अपनी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस डिजिटल फ्रीक्वेंसी को। कंटिन्यूस कैपिटल ओमेगा नहीं कह रहा, स्मॉल ओमेगा, लिखा भी स्मॉल ओमेगा है। इसका मतलब है कि दैट इज योर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सॉरी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को आप, सॉरी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी को आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पे लेकर गए। इनिशियली इट वाज फ्रॉम 0 to 2π कंटिन्यूअस, जैसे आप नजर आ रहा है इट इज ए कंटिन्यूअस सर्कल। लेकिन आई व्हाट आई डिड, मैंने इसमें से ये पार्ट गिरा दिए और ये यहाँ पे वैल्यूज उठा ली, तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं डिस्क्रीट फोरियर की, क्योंकि ये हमारा मेन वो है, हमारा भाई है, मेन भाई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टीज में, कि जिस तरह मैंने आपको जी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, और पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि लीनियरिटी। लीनियरिटी आपको पता है। अब आप नहीं कह सकते हमें लीनियरिटी का नहीं पता, ठीक है ना जी। आपको पता है कि दो चीजें, एडिटिविटी और स्केलिंग को कोई भी चीज फॉलो करे तो हम कहते हैं जी ये लीनियरिटी को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर एक्स ऑफ एन और कैपिटल एक्स ऑफ के आर द पेयर, फोरियर पेयर, ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने कहा कि अगर एक्स वन एफ एन हो जाए तो आउटपुट एक्स वन ऑफ कैपिटल एक्स वन ऑफ के हो गया, एक्स टू है तो एक्स टू ऑफ के हो गया। अब क्या कहता है लीनियरिटी कि जनाब इसको स्केलिंग कर लो, ए बी से मैंने इसको स्केल कर लिया और फिर ऐड किया। अगर आपका आउटपुट ये आता है तो इसका मतलब है कि आपका फोरियर जो है, डिस्क्रीट फोरियर जो है, वो लीनियरिटी को मानता है, अदरवाइज नहीं मानता। तो ये मानता है, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। नंबर टू चीजें, नंबर टू लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर टू इज दी पीरियोडिसिटी। नंबर टू इज दी पीरियोडिसिटी। क्या मतलब है पीरियोडिसिटी का? आपको पता है पीरियोडिक का मतलब होता है जो चीज अपने आप को बार बार रिपीट करे। जैसे अभी अगर आपने देखा हो, मैंने जब कहा था कि एन टाइम उसको तोड़ दो, देखिए मैंने आपको ये यहां पे ये समझाने की कोशिश की कि एन पी आपने ओमेगा को एन टाइम में तोड़ दिया, ये जैसे आपने यहां पे किया, ओमेगा को आपने एन पीसीज में तोड़ दिया। तो अगर मैं यहां पहुंच जाऊं तो फिर क्या होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इट इज पीरियोडिक, इट इज पीरियोडिक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही चीज है यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे हमारा एक्स ऑफ एन, हमारा एक्स ऑफ एन जी, हमारा एक्स ऑफ एन है 1 2 3 4, कुछ भी मैंने ले लिया। मैं अगर ये पीरियोडिक है तो इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब ये है कि 0 पे 1 है, 1 पे 2 है। जैसे ये देखिए आपको पता है ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे है। तो लेडीज एंड जेंट, और 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 है, 3 इंडेक्स पे 4 है। तो मैंने एक ब्लॉक बना दिया आपको समझाने के लिए। अगर यही ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है आगे भी और पीछे भी, तो मैं कहूंगा ये मेरा मेरा ये सैंपल या सिग्नल पीरियोडिक है, मेरा ये सिग्नल पीरियोडिक है। देख लें यहां पर भी यही हो रहा है, वही देख लें,
1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इट इज पीरियोडिक। लेकिन दिस इज दी समथिंग फंडामेंटल जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे मेरा कैपिटल एन जो है दैट इज 4, 1 2 3 4। तो अब इसका मतलब है कि जो, थोड़ी तवज्जो दो, इसका मतलब है कि जो जीरो पे है फिर वो 1 पे है, जो जीरो पे है, जो जीरो पे है वो 1 पे है, जो 1 पे है वो 5 पे है, जो 2 पे है, मैंने यहां पे इसको मार्क भी किया कि जो 2 पे है, ये देख लो, जो 2 पे है वो 6 पे है। तो इट इज रिपीटिंग। इसका मतलब है कि जो जीरो पे है वो 4 पे है, जैसे मैंने यहां पे लिखा, जो 1 पे है वो 5 पे है। इसका मतलब उल्टा भी कर दो तो फर्क नहीं पड़ता, यानी 4 पे जो है वो 0 पे है, जो 5 पे है वो 1 पे है, उल्टा भी लिख लो। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू, जो भी ये n की वैल्यू है, जैसे यहाँ 1 है, इसमें कोई नंबर ऐड होता है जो ये कैपिटल N है, और उसके बाद ये वही चीज दोबारा बन जाता है। अगर कोई सिग्नल ये चीज फॉलो करता है तो हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक है। इसका मतलब वो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और इस n वैल्यू को जिसके बाद वो रिपीट करता है, जैसे यहाँ पे 4 है, मैंने कहा आपको पहले भी, दिस नंबर इज कॉल्ड पीरियड। दिस नंबर इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द सिग्नल। ठीक, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो यहां पे भी हमने यही बात की कि अगर हमारा एक इनपुट सिग्नल है और ये हमारा आउटपुट सिग्नल है जो कि फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म के बाद मिला, तो अगर हम अपने इनपुट सिग्नल को, अगर हम अपने इनपुट टाइम डोमेन सिग्नल को पीरियोडिक है तो फिर वो इसको फॉलो करेगा, ये हमने पढ़ा भी हुआ है। और अगर ये पीरियोडिक इन टाइम है तो फिर इस बड़ा आसान बात है कि ये फ्रीक्वेंसी में भी उसी तरह पीरियोडिक होगा। इसको भी कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स ऑफ के और कैपिटल एक्स ऑफ के प्लस एन। वही जैसे यहाँ पे एन प्लस कैपिटल एन था, यहाँ पे, यहाँ पे आपका इंडेक्स के कैपिटल के एन था, स्मॉल एन था, यहाँ पे आपका के है तो के डजेंट मैटर। तो दिस इज द पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तीसरी बात, उससे भी मजेदार और आसान, क्या है जी आसान और मजेदार बात? जी, थर्ड प्रॉपर्टी इज अबाउट दी टाइम रिवर्सल, जो कि आपको पता है। ठीक है, इसलिए बाद स्टूडेंट ने कहा कि जी हमें, हफ्सा ने कहा कि आपने बड़ी चीजें, although this is a DFT, this is a DSP पार्ट, लेकिन देखिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है वो चीजें जो कि आपको सीखनी चाहिए थी इन योर सिग्नल सिस्टम, जो कि नहीं थी। एनी तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि टाइम रिवर्सल का मतलब यह है कि अब मिररिंग, फोल्डिंग, इसको आप मिररिंग भी कह सकते हैं, इसको आप फोल्डिंग भी कह सकते हैं, मिररिंग भी कह सकते हैं, फोल्डिंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना जी। तो मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास, चले हम एक आसान सी बात कर लेते हैं कि आपके पास यू ऑफ एन है, ये है यू ऑफ एन, टक टक टक, 1 2 0, and this is your u of n. Time folding or time reversal means find u of minus n, u of माइनस एन। तो क्या हो जाएगा? आपको तो सबको आता है माशाल्लाह, ये 0 है, ये 1 -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो दिस इज द टाइम रिवर्सल। तो क्वेश्चन ये हमारा है कि अगर टाइम रिवर्सल इसका अगर एक्स ऑफ के है तो इसका एक्स फोरियर में फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या वैल्यू होगी? मसला समझ आ गया क्या हम क्लियर करना चाहते हैं? और ये तो हमने पढ़ा ही पढ़ा हुआ है कि हाँ, जब भी हम डीएफटी की बात करेंगे, वी एज्यूम दैट आवर टाइम डोमेन सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल इज ऑलवेज पीरियोडिक। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर ये मेरा एक्स ऑफ एन है तो उसका हमें पता है कि पेयर जो है, फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर जो है वो है एक्स ऑफ के। तो मसला ये है कि अगर मैं इसको टाइम रिवर्स कर दूं, एक्स ऑफ एन को एक्स ऑफ माइनस एन कर दूं, तो मेरी वैल्यू क्या होगी आफ्टर मिररिंग?
किस डोमेन में? फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा कि मेरा एक्स ऑफ एन, जो कि इस कैपिटल एन नीचे लिखने का मेरा मकसद ये था कि टू शो यू दैट दिस सिग्नल इज पीरियोडिक, दिस सिग्नल इज पीरियोडिक। ठीक है, ओके, दिस 1 2 3 4 इज पीरियोडिक एंड दैट द रीजन। जब मैंने इसको पढ़ाने की कोशिश की तो मैंने 0 1 2 3 पे इसको प्लॉट किया और इसके बॉक्स बनाया to show you that this has a n value 4, n value 4, and, और याद रखो, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो उस बात पे कि जब मैं n को कहता हूं कि 4 तो यहां टाइम में भी 4 होगा और इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएगा वो भी 4 होगा। इसलिए दोनों, जैसे मैंने अभी ओमेगा को 4 पीसेस में तोड़ना है तो 4 जगहों पे मुझे वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों तरफ एन वही वही मकसद रखता है। ठीक है, लेकिन चाय फिर खत्म हो गई है, आप तो आराम से घर बैठे हुए हैं ना, हम और हमें कहते हैं जाओ यूनिवर्सिटी जाओ, हमें पढ़ाओ। चल ठीक है जी, आप हमारे कस्टमर हैं, हम आपको खफा नहीं करेंगे, कस्टमर तो ऑलवेज राइट होता है ना जी। तो अब मैंने करना क्या चाहा, मैंने इसको टाइम में तो आपको आता है इसलिए मैंने इसको फ्लिप किया। लेकिन ये गलत कर रही हूँ, टाइम रिवर्स, सॉरी टाइम रिवर्सल है। हाँ, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी है। और हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स राइट, नॉट गलत। लेकिन हमें पता है कि ये पीरियोडिक है। इसका मतलब है कि अगर ये 0 1 2 3 पे ये बॉक्स है तो ये बॉक्स इसके आगे भी है और ये बॉक्स इसके पीछे भी है। या दैट इज अंडरस्टैंडेबल। इसका मतलब पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है अभी सीखा है कि जनाब ये बॉक्स जो आपका है, ये बॉक्स यहां पर भी है, ये बॉक्स यहां पर भी 4 के बाद आएगा, ये 4 का बॉक्स आगे भी जाएगा और हमेशा जाएगा। दिस इज पीरियोडिक। ठीक है ना? तो देखिए वही काम मैंने यहां पे किया कि अगर 0 to 3 था तो वही चीज जो 0 पे है वो -4 पे, -3 पे, -2 पे, -1 पे। अब आके आप इसका, उम्मीद करता हूं कि यू विल बी लर्निंग इट, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि ओके, मैं ये करता हूं कि इस, अब ये जब आपस में होंगे, टाइम रिवर्स करेंगे तो कैसे करेंगे? लाजमी तौर पे ये बॉक्स का, यानी कि 0 पे जो है ये तो अपनी जगह पे रहेगा, जो 1 है वो -1 पे चला जाएगा, जो 2 है वो -2 पे चला जाएगा, जो 3 है वो -3 पे चला जाएगा, जो 4 इस केस में नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये 3 सिग्नल इधर चले जाएंगे। इसी तरह जो इधर हैं वो इधर चले जाएंगे, क्योंकि दोनों एक किस्म का यहां मिरर रखा तो इधर इधर की चीजें इधर चली गई, फिर यहां पे मिरर उल्टा रखा तो इधर की चीजें इधर चली गई, तो इसका मतलब ये चीज बन जाएगी। कैसे बन जाएगी चेक करते हैं। ये तो अपनी जगह पे रहा, जो -1 पे था वो +1 पे आ जाएगा। दैट्स अमेजिंग, गुड। 4 आ गया। फिर जो -2 पे है वो यहां पे +2 पे चला जाएगा, देखिए 3 आ गया। फिर जो -3 पे है वो +3 पे चला गया, 2 आ गया। क्या ये 2 है? इसे देखिए मैंने इनके थोड़ा, आपको फील नहीं हो रहा लेकिन इनको मैंने थोड़ा डार्क कलर दिया और इसको थोड़ा लाइट कलर दिया ताकि आपको पता चले कि इधर वाली चीजें इधर चली गई, यानी कि डार्क से डार्क वाले लाइट की तरफ चले गए, और लाइट वाले, मैं कलर चेंज करके ये बताना चाहूंगा कि लाइट वाले जो हैं वो डार्क की तरफ चले जाएंगे। तो यहां वाले इधर रिवर्स कर गए, फ्लिप कर गए, और इधर वाले इधर कर गए। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 को अगर आप देखें तो रिवर्स होने के बाद इसका हालत क्या बन जाएगी? ये बन जाएगा 0 पे 1, देख लो, 1 पे 4, 2 पे 3, और 4 पे 1। हुआ क्या? हुआ क्या? और ये क्या बन गया? एक्स ऑफ एन से एक्स ऑफ -n बन गया, एक्स ऑफ एन से एक्स ऑफ माइन, और देखो अभी भी ये पीरियोडिक है, अभी भी ये पीरियोडिक है। यानी बात ये कर रहे थे कि ये हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये फ्लिप्ड है
और ये पीरियोडिक है, तो फिर ये किसके बराबर होगा? एन माइनस एन के। यानी कि जो एन की वैल्यू इस केस में 4 है, तो 4 माइनस, अगर मिसाल के तौर पे हम देखना चाहते हैं 3 वाले को, तो 4 - 3 = 1। तो हम देखना चाहेंगे कि 3 और 1 पे एक ही तरह की है, 3 और 1 पे वैल्यूज इसकी सेम है। एक्स ऑफ 1 पे 4 है, और एक्स ऑफ, जी बिल्कुल, 1 पे 4 है वैल्यू इसकी। तो कहने का मकसद है, और हर 4 के बाद ये रिपीट होगा, यही वैल्यू रिपीट होगी। जैसे यहां पे ये 4 था, वापस 4 रिपीट हुआ, पीरियोडिसिटी है ना। तो यही बात हमने यहां से निकली कि भाई अगर ये पीरियोडिक है तो इसकी शिफ्टिंग वैल्यू जो होगी दैट विल बी लाइक दिस। अब अगर यही पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं इधर, कि जी अगर हमारा सिग्नल शिफ्ट हो गया टाइम में, तो यानी फ्लिप हो गया, रिवर्स कर गया टाइम में, रिवर्सल हो गया, टाइम रिवर्सल हो गया, तो क्या होगा? इसी तरह जैसे यहां पे ये माइनस एन के बराबर था, माइनस एन के, ये माइनस के बराबर हो, जो कि अगेन एन माइनस एन था ना यहाँ, एन माइनस के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, टाइम रिवर्सल की, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी की, जी बिल्कुल। आगे चलते हैं जी। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात करना चाहते हैं अबाउट दी टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग यानी टाइम शिफ्टिंग से मतलब तो आपको आता है ना, क्या मतलब बताया हुआ है? कोई चीज डिले कर जाए या एडवांस कर जाए, तो हम कहते हैं कि टाइम, ओके। तो हम कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका सिग्नल है 1 2 3 4, पीरियोडिक है, एन साथ इसलिए लिखा है कि पीरियोडिक सिग्नल है, इसलिए बॉक्स के अंदर डाल दिया है कि ये बॉक्स बार बार आगे भी रिपीट होगा, पीछे भी रिपीट होगा। ओके। अब अगर आप इसको, इसका मतलब क्या है, जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए लेकिन फर्दर भी बता दूं। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्स ऑफ, ये अगर एक्स ऑफ एन है, और आप इंटरेस्टेड है एक्स ऑफ एन माइनस वन में, इसका मतलब ये होगा कि ये सिग्नल एक आगे चला जाएगा। इसका मतलब है जो 3 पे है वो 4 पे चला जाएगा, 3 वाला 4 पे चला जाएगा, 2 वाला 3 पे आ जाएगा, 1 वाला 2 पे चला जाएगा, 0 वाला 1 पे चला जाएगा। अब अगर मैं पूछूं, इसका मतलब है कि ये जो फोर्थ वाला है, ये इससे निकल के, इस बॉक्स से निकल के, इस बॉक्स से निकल के बाहर निकल जाएगा, लेकिन पीछे अंदर से भी, पीछे से भी तो आएगा। वो क्या होगा? अगेन ये चीज रिपीट हो रही है, तो 4 पीछे था, यहां पे 4 था, यहां पे 3 था, यहां पे 2 था, तो ये वाला अंदर चला जाएगा। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा? 4 4 1 2 3, और ये बाहर निकल गया। तो देखिए यही मैंने लिखा है, 4 1 2 3। इसी तरह अगर ये एडवांस हो जाए, तो क्या हो जाएगा? x(n+1), x(n+1), तो इसका मतलब ये सिग्नल इधर चला जाएगा, तो ये अंदर, ये वाला सिग्नल इस बॉक्स से बाहर निकल जाएगा। जब निकलेगा तो इसका ये सिग्नल अंदर आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 4 पूरी करनी है। तो अगेन इट विल लुक लाइक 2, ये सिग्नल जब बाहर चला गया तो इट विल बी स्टार्टिंग विद 2, 2, और सॉरी यहाँ 4 नहीं है, एक मिनट में इसको क्लैरिफाई कर दूं। ये तो बाहर निकला हुआ सिग्नल बताया ना। अब इसको हम ओरिजिनल सिग्नल पे वापस आए, यहाँ पे अगेन 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, 1 है, तो ये अंदर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, देखिए जी 2 3 4 1। तो हमारा सवाल ये है कि अगर हमारा सिग्नल शिफ्ट कर जाए, क्योंकि यहां तो मैंने एक एक इंडेक्स से शिफ्टिंग की है, या एक से डिले किया है, या एक से एडवांस किया है, लेकिन कोई किसी की सहीफे पे तो नहीं लिखा कि एक ही करना है। जेनेरिकली यू कैन से दैट यू कैन डिले इट बाय एल यूनिट्स, और यू कैन एडवांस इट बाय एन यूनिट्स। तो यहां भी मैंने ये लिखा कि अगर आपका एक्स ऑफ एन का
डीएफटी आपको पता है कि एक्स उसका पेयर एक्स ऑफ के है, तो अगर आप इसको एक डिले कर दें तो हाउ इट विल लुक लाइक एक्स ऑफ के, यानी कि एक्स ऑफ के उसी तरह आ जाएगा जैसे हमने जी ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ा था कि वहां पे भी डिले करते थे तो जी की पावर -1 आ जाता था, इफ यू रिमेंबर इसकी जगह, और जी यहां पे पुट कर लो वही वैल्यू आएगी। तो अगर मिसाल तो भाई यहाँ 1 है, याद करो देखो उसी तरह की बिल्कुल चीज है। तो ई जे टू टू के पाई डिवाइड बाई ई जे ओमेगा एन है ना, तो दिस इज यहाँ पे एन या एल है, तो दिस इज बेसिकली द सेम, Z-1 आ गया। जी माइनस, और जी की वैल्यू आपको इस लेक्चर के शुरू में बताई है। तो एक तरीका इसको यूं भी लिखने का होता है, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे एक साइन बदल जाएगा बस। याद रखो कि अगर यहाँ पे एक्स ऑफ एन प्लस एल हो तो उसका डीएफटी क्या होगा, वही एक्स ऑफ जी, एक्स ऑफ के इंटू ई माइनस जे टू पाई के एल डिवाइडेड बाय एन, बस वही हमारा पुराना वाला खेल। एक टर्म यूज होती है डीएसपी में जिसको कहते हैं ट्विडल फैक्टर। क्या कहते हैं, ट्विडल फैक्टर। तो बेसिकली ट्विडल फैक्टर क्या करता है, वो कहता है कि जनाब इंस्टेड ऑफ कि इतना लंबा लिखो, इसको आप डब्ल्यू, नीचे डिवाइड हो रहा है एन, और ऊपर क्या है के एल। तो इसके अंदर डब्ल्यू जो है इसके अंदर ये ई और माइनस जे सॉरी प्लस जे टू पाई इसके अंदर छुप जाता है, 2 पाई के। आपकी मर्जी है कि आप ट्विडल में लिखते हो नहीं लिखते हो, लेकिन ये याद होना ये दो बातें रियल है, समझ आनी चाहिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ट्विडल फैक्टर करते हो तो करो, नहीं करते हो मर्जी। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि कर क्या रहे हो, यू हैव ए सॉरी यू हैव ए टाइम shifted signal, and that is equal to what, the you have to multiply your x of z जो है हमने वहां पे कहा था, यहाँ पे x of k कहेंगे, with a z की पावर -1 मल्टीप्लाइंग बाय फेज। और z की पावर -1 किसको रिप्रेजेंट करती है, फेज को, तो मल्टीप्लाइंग बाय फेज फैक्टर ओमेगा डब्ल्यू एन, नॉट ओमेगा। तो ट्विडल में जस्ट समझाने के लिए। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, डू वी नीड दिस, या आई शुड स्किप इट। मैं इसको स्किप कर देता हूँ कॉन्जुगेट्स को। अच्छा, ये आसान आसान वाले कर लेते हैं। ये आपको एक क्विज में भी दिया था कि अगर आपका एक्स ऑफ एन है तो उसका, वहां पे हमने कहा था एक्स ऑफ जी, तो इस तरह यहाँ पे एक्स ऑफ के कह देंगे, कौन सी मुश्किल बात है। इसी तरह एच ऑफ एन हो तो इट इज एक्स ऑफ के। तो एक स्टूडेंट मेरे पास आया भी कि जी मैंने ठीक क्विज किया है, तो वहां पे मैंने कहा क्वेश्चन ये दिया था कि भाई इट इज कन्वॉल्व्ड इन टाइम, व्हाट विल बी इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन, जी डोमेन। तो अगर जी होगा तो एक्स ऑफ जी इंटू नॉट कन्वर्ट इनटू एच ऑफ के जी था, बस यहाँ पे जी इज रिप्लेस बाय के। कौन सा मुश्किल काम है, ठीक है। इसी तरह याद रखो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कि अगर आप टाइम में इनको मल्टीप्लाई करो तो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में दे विल बी कन्वर्ट। इसी का अपोजिट वो है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन कोरिलेशन ऐसे भी आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं इसमें नहीं जाता, अगली क्लास को ये रगड़ा दूंगा। अब कुछ छोटी सी एग्जांपल्स कर लेता हूं ताकि ये शुड बी क्लियर, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन एग्जांपल नंबर 1 में मैं कहता हूं कि जी मेरा इनपुट सिग्नल है एक्स ऑफ एन, ए उसका वैल्यू है, कब, जबकि इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेके एल तक है, जैसे मैंने यहां पे प्लॉट भी किया कि 0 से लेके एन एल तक। और फिर ये पीरियोडिक है, तो ये अगर अगर वो डीटीएफटी मांग रहा है, डी अगर ये डीएफटी होता तो ये पीरियोडिक है। एनी हाउ, यहाँ पे पीरियोडिक भी हो सकता है और नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है, लेकिन एनी हाउ यहाँ हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि 0 पे भी ए है, 1 पे भी ए है, 2 पे भी ए है, 3 पे भी ए है, अप टू एल है, अप टू। बल्कि अगर बेहतर ये है कि मैं यहां पर भी एक ए बना दूं, ये यहां तक ए है, और उसके बाद फिर ये देख लो मैंने ये जीरोस लगाए हैं, उसके उसके बाद भी
जीरोज हैं, जो कि कहते हैं जीरो अदरवाइज, और कहता है कि डीटीएफटी फाइंड करो। इसका मतलब मुझसे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। कैसे सॉल्व करूं? अभी आपको आता है कि हमने कहा कि जी हमारा डेफिनेशन ये कहता है कि एक्स ऑफ ओमेगा बराबर है, अब समेशन कहां से कहां तक होगी? जीरो से एल तक। तो इसका मतलब पहले मैंने ले लिया जीरो से इंफिनिटी, मैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी भी ले सकता हूं, लेकिन यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा। आप लिखना चाहे तो लिख लें, एक्स ऑफ एन इंटू ई माइनस जे ओमेगा एन। आसान। अब एन की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू एल, और एक्स ऑफ एन की वैल्यू हमने पुट कर दी ए, ई माइनस जे ओमेगा एन। ए तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल दिया तो ये आ गया। अब अगेन मैंने अभी समझाया कि अगर आपकी दो लिमिट्स हैं, जीरो टू एल, जीरो टू इंफिनिटी नहीं है, तो यू विल बी, अजान को मैं रोक दूं। ओके जी। तो क्या हो जाएगा? वन माइनस ए की पावर के प्लस वन। अब के हमारा यहाँ पे क्या था? के इज दी अपर लिमिट, तो अपर लिमिट प्लस वन। तो अपर लिमिट यहाँ पे मेरी क्या है? अपर लिमिट इज एल, तो एल प्लस वन हो जाएगा। तो और मेरी यहाँ पे जो कॉमन रेशो है वो ई माइनस जे ओमेगा एन है। तो माइनस जे ओमेगा और एन जो इंडेक्स है, दैट इज चेंजिंग अप फ्रॉम जीरो टू एल, तो एल प्लस वन आ गया, यानी के प्लस वन डिवाइड बाय वन माइनस द इंडेक्स ई माइनस जे ओमेगा। ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन, यानी टाइम डोमेन में इट वाज लाइक दिस, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इट इज लाइक दिस। वेरी, ठीक है जी। अब आखिरी क्वेश्चन प्रोबेबली, या शायद और भी हो, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, डरने की बात नहीं। ऐसे भी आप डरते कहाँ हैं? पढ़ने से तो आप डरते ही नहीं है ना, ये तो मुझे पता है। अब ये देखिए, उससे भी आसान क्वेश्चन हमने ले लिया। अब हमने कहा कि एक्स ऑफ एन जो है वो वन बाय फोर के बराबर है, लेकिन कब? जबकि एन की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू जीरो से ज्यादा और इक्वल और लेस देन और इक्वल टू टू, अदरवाइज जीरो। तो इफ आई प्लॉट इट, इट इज लाइक दिस, जीरो पे, वन पे, टू पे इट इज वन बाय फोर, और उसके बाद भी और उसके आगे भी इट इज जीरो। और कहता है कि नहीं जी, फाइंड क्या करना है? एक्स ऑफ के, नॉट एक्स ऑफ ओमेगा। इसका मतलब है कि ही इज इंटरेस्टेड इन दी डीएफटी, ही इज इंटरेस्टेड इन दी डीएफटी। कैसे करें? अगेन फार्मूला हमने रट लिया है कि एक्स ऑफ के इज इक्वल फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन इंटू एक्स ऑफ एन इंटू ई माइनस जे टू पाई एन के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एन साहब, कैपिटल एन क्या वैल्यू हो? तो जनाब बड़ा आसान सा सवाल है। एन की वैल्यू, इसका मतलब है कि अपर लिमिट जो है दैट इज इक्वल टू टू, लोअर लिमिट इज जीरो, जीरो टू टू है सिग्नल है। तो इसका मतलब है कि एन माइनस वन, क्योंकि अपर लिमिट इज दिस एन माइनस वन, एन माइनस वन इज टू। इसका मतलब सिंपल, एन इज इक्वल टू थ्री। इसका मतलब है कि मुझे बता रहा है कि थ्री पॉइंट डीएफटी फाइंड करोगे, क्योंकि आपके इनपुट में भी तीन सैंपल्स हैं, तो आपके आउटपुट में भी तीन सैंपल्स होंगे। ठीक है ना? इसलिए मतलब इसको कहते हैं थ्री पॉइंट डीएफटी। ओके, चेक करते हैं जी कि क्या कहता है जी। तो हम देखें, मैंने पुट कर दिया जीरो टू एन माइनस वन लिमिट्स एक्स ऑफ एन ई माइनस जे टू पाई के एन डिवाइड बाय कैपिटल एन विच इज थ्री। अभी हमने प्रीवियस पेज पे कैलकुलेट किया। अब इसका क्या जवाब आएगा? अब इसको आप वैल्यूज पुट कर दें। एन की वैल्यू पहले जीरो है, तो यहां जीरो पुट कर दिया। यहां भी एन की वैल्यू जीरो है, यहां भी एन की वैल्यू जीरो, यहां भी एन की वैल्यू जीरो पुट कर दी। तो ये हमारे पास आ गया एक्स ऑफ जीरो, ई ऑफ जीरो। फिर वन पुट किया, तो यहां भी वन आ जाएगा, यहां भी वन आ गया। फिर टू पुट किया, क्योंकि जीरो से टू ही था, तो ये टू आ गया। ओके, अब क्या हुआ जी? ई की पावर जीरो इज वन, तो हमने ले लिया एक्स ऑफ जीरो। यहां पे आ जाएगा एक्स ऑफ वन इंटू ई माइनस जे टू पाई के डिवाइड बाई थ्री, एक्स ऑफ टू ई माइनस जे टू पाई के डिवाइड बाई थ्री। अब सवाल है कि के की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि के की वैल्यूज पुट करनी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, के की वैल्यू जीरो से एन माइनस वन तक, और जीरो से एन माइनस वन क्या है? टू। यानी पहली के की वैल्यू हम इसी फार्मूले में, पहली के की वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो हमारे पास
के ऑफ जीरो आ जाए, एक्स ऑफ के आ जाएगा, एक्स ऑफ जीरो आ जाएगा। फिर हम वन वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू वन पुट करेंगे तो कैपिटल एक्स ऑफ वन आ जाएगा। फिर हम के की वैल्यू टू पुट करेंगे तो कैपिटल एक्स ऑफ टू आ जाएगा। तो हमारे पास तीन फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि तीन ही हमारे सैंपल, ये आपको नजर भी आ रहे हैं, तीन ही हमारे टाइम डोमेन में डिस्क्रीट सैंपल्स थे, तो हमारे पास तीन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सैंपल्स भी आ जाएंगे। वेरी सिंपल। तो कर लेते हैं जी, ताकि आप लोग परेशान ना हो। तो ये देखें जनाब, मैंने के की वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो यहाँ पे के था, यहाँ जीरो। अब बताओ एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, 1/4। एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, 1/4। तो देखिए एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू 1/4, एक्स ऑफ वन की वैल्यू भी खुशकिस्मती से 1/4 है। 1/4 ई, और के की वैल्यू जीरो है। के की वैल्यू, के की वैल्यू जीरो है। तो ई की पावर जीरो वन, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4। यहां भी के की वैल्यू जीरो, तीसरे में भी के की वैल्यू जीरो, तो ये भी ई की पावर जीरो वन। इसका मतलब कि एक्स ऑफ जीरो इज 3/4। इसका मतलब डीसी वैल्यू 3/4 होगी, 3/4 वोल्ट होगी मिसाल के तौर पे। फिर के की वैल्यू वन, कि सेकंड फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज की क्या क्या हैसियत है आपके इस इनपुट सिग्नल में, इस इनपुट सिग्नल में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन देख लेते हैं। ओके, देखें जी, आपने जहां जहां यहाँ पे के था वहां पे वन पुट कर दिया, जहां जहां के था वहां पे वन पुट कर दिया। देखिए यहां भी वन पुट कर दिया। अब अब क्या होगा, एक्स ऑफ वन से ये स्टार्ट होगा। थोड़ा सा इसको छोटा किया जा सकता है जी, नजर आता है, दैट्स गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन देखें, एक्स ऑफ जीरो प्लस एक्स ऑफ वन जी, तो पहली वैल्यू आ जाएगी एक्स ऑफ जीरो, तो एक्स ऑफ जीरो 1/4 है। फिर एक्स ऑफ वन, वो भी 1/4 है, लेकिन के की वैल्यू ऑफ वन है, क्योंकि यहाँ पे पिछले केस में जीरो हो गई थी ना, तो यहाँ पे अब वन है। ये देख लो, ये वैल्यू वन है, ये वैल्यू यहाँ पे वन है, यहाँ पे के की वैल्यू वन है। तो हमारे पास आ गया EJ 2π/3, विच इज इक्वल टू कॉज, आपको पता है कि EJ इज इक्वल टू, अगर ये माइनस है तो माइनस भी लगा लेता हूं, कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा। तो यही मैंने यहां पे किया, कॉस 2π/3 माइनस जे साइन 2π/3। इसी तरह यहां पे आ जाएगा कॉस 4π/3 माइनस जे साइन 4π/3। दैट इज वेरी सिंपल, 1/4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कॉस 2π/3 की वैल्यू और साइन 2π/3 की, और कॉस पाई बाई 4π/3 और इसकी वैल्यूज पुट कर दो। यही यहाँ पे किया गया जी, यही किया गया। आप देख सकते हैं कि जहां जहां इसकी वैल्यू कहीं -0.5 है, कहीं 8.866 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए। बाकियों को सम अप किया तो पता चला कि वन फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल में है ही नहीं। इसी तरह टू की वैल्यू पुट करें, अपनी मर्जी का आंसर निकाल लें, क्योंकि आसान है, आप कर लेंगे। तो यूं आपने सीख लिया कि जिस तरह कि हमने जी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, और इसके अलावा हमने इसके अलावा हमने एक एक प्रॉब्लम भी इसमें कर किया कि जनाब, अगर आपने जैसे जी के, तो आपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स किए, आपने डीटीएफटी के प्रॉब्लम भी किए, आपने डीएफटी के प्रॉब्लम भी किए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कोर्स आसान लगेगा। अब आपको कुछ कल मैं प्रॉब्लम्स दे दूंगा कि आप उनको सॉल्व करें यदि असाइनमेंट नंबर 2, और वो आप मुझे जब एग्जाम का दिन होगा तो उस दिन, यानी उससे पहले मैं आपको नहीं कह रहा, मतलब उस दिन आपने उनको सॉल्व करके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बिफोर एग्जाम, और वो आपकी असाइनमेंट नंबर 2 भी हो जाएगी, तो आपके पेपर के साथ ही वो आपसे कलेक्ट कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आई स्टॉप हियर। उम्मीद करता हूं कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। अल्लाह हाफिज एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक्स।